میری دوست شاہدہ کی شادی کو 12 برس بیت چکے تھے۔ جب اولاد کی خوشی اسے نصیب نہ ہوئی تو وہ بے حد غمزدہ رہنے لگی۔ کئی لوگوں کی منتیں کی، جن قریبی رشتے داروں کے زیادہ بچے تھے وہ تنگ دست تھے۔ ان سے کہا کہ ایک بچہ مجھے دے دو، اسی طرح اسے پالیں گے کہ وہ اپنی زندگی پر رشک کرے، مگر کوئی اپنا بچہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ سچ ہی ہے کہ اولاد سے بڑھ کر میٹھا پھل تو کوئی نہیں۔ جب شاہدہ آئی تو وہ پہلے سے زیادہ دل گرفتہ لگی۔ ہر بار یہی دکھ بیان کرتی، ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں، متوسط طبقے سے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو گئے ہیں، کاروبار میں میرے شوہر کو ہر سال لاکھوں کا منافع ہوتا ہے، سب کچھ بن مانگے مل رہا ہے، لیکن جو نعمت اپنی رب سے مانگتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور تمہیں بھی تمہاری مراد ملے گی۔ مگر اس کی تسلی نہ ہوئی، کہتی مجھے تو یوں لگتا ہے ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ میں نے اسے بارہا سمجھایا، توبہ کرو شاہدہ، تمہاری مراد قبول ہونے کی وجہ یہ نہیں، اللہ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جسے بندے نہیں سمجھ پاتے۔ سبھی کو سبھی کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک شے ملتی ہے تو کسی کو کوئی اور خوشی مل جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ جب شاہدہ کی شادی اسرار بھائی سے ہوئی تو وہ ایک کمپنی میں معمولی ملازم تھے۔ ان کی والد کے وفات کے بعد وراثت میں خالی زمین ملی جو شہر سے کافی دور تھی۔ شاہدہ دعا کرتے کہ اللہ پاک اس کے بھی دن پھیر دے۔ والدین کے گھر غربت دیکھی، اب شوہر بھی کچھ زیادہ آسودہ حال نہ ملا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ کچھ عرصے بعد وراثت میں ملی زمین شہر میں آ گئی اور قریبی ایک دوسرے پلاٹ پر کسی نے پلازہ بنوا دیا۔ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اسرار بھائی سے منہ مانگے داموں ان کا پلاٹ خرید لیا۔ اسرار بھائی نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار سیٹ ہوتا گیا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرار بھائی کروڑ پتی ہو گئے۔ شادی کے 12 سالوں کے اندر شاہدہ کروڑ پتی بزنس مین کی بیگم بن کر اپنی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ اب زندگی میں کسی آسائش کی کمی نہ رہی، مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ وہ کہتی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین، جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت شہرت اور جسے چاہے اولاد دے دے۔ میرے شوہر کی ملازمت سعودی عرب میں ہوئی تو میں ان کے ساتھ وہاں چلی گئی اور 3 برس تک شاہدہ سے نہ مل سکی۔ اب کی بار پاکستان آئی، اس سے ملنے گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، 5 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی جسے وہ اپنی بیٹی کہہ کر مجھ سے متعارف کروا رہی تھی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ مگر تم تو… اس نے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ایک دن میرے گھر ملنے آئی اور بولی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہوں، جب تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہو جاتا میں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ یہ بتاؤ شاہدہ، یہ بیٹی کب ہوئی؟ 1 2 بار فون پر بات تو ہوئی، مگر تم نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میرے ہاں تو اولاد نہ ہوئی، مگر اللہ نے یہ پیاری سی بیٹی مجھے عطا کر دی ہے۔ تبھی اس نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک روز جب بارش کے بعد خنکی بڑی اور شام کو ہی سردی ہو گئی، میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر بالکنی میں آئی اور سڑک پر نگاہ دوڑائی، جہاں ٹریفک برائے نام تھا، اکا دکا لوگ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا لیکن سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کا سما لگتا تھا، تاہم ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر 2 سایوں پر پڑی جو ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ وہ قریب آ گئے تو دیکھا ایک کمزور سا مفلس آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی اور دوسرے میں ایک ننھی بچی کا ہاتھ تھا۔ وہ تیزی سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا، یقیناً اسے رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، شاید بارش برسنے کا ڈر ہوگا۔ میں نے ان دونوں کو بغور دیکھا۔ وہ 4 برس کی ہوگی، اس عمر میں بھی وہ ایک بوسیدہ گلابی دوپٹے سے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں ہی ننگے پیر تیز چل رہے تھے۔ بچی بڑی دقت سے باپ کے ساتھ تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا اس غریب باپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ ننھی سی بچی کو جوتے پہنا کر ننگے پیروں چلنے کی تکلیف سے بچائے۔ میں نے ایک پیر سے چپل اتاری اور فرش کی ٹھنڈک پر پیر رکھ دیا۔ فرش کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی۔ بارش سے زمین پر ویسے بھی سردی ہوتی ہے۔ یہ تو سڑک تھی جس پر جگہ جگہ پانی موجود تھا اور ایک معصوم بچی اس پر دوڑی جاتی تھی۔ اف میرے اللہ، مجھے ٹھنڈ اور زیادہ محسوس ہونے لگی، مگر وہ گرد و پیش سے بے خبر اس نامالودہ فضا سے بے نیاز گیلے کپڑوں میں تھی۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ کیا گزر رہی ہوگی اس پر۔ میں نے اپنے گھر میں جھانکا، اس رات گاڑی کو گیراج میں بند کرنے جا رہے تھے، تبھی آواز دی کار کو گیراج میں نہ لے جائیں، ابھی آ رہی ہوں میں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے اور حیرت سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے ایک کمبل اٹھایا اور الماری سے 2 شالیں نکال کر زینے کی طرف دوڑی اور تیزی سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ ہاں وہاں ذرا سڑک تک جانا ہے، یہ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، گاڑی کو سڑک پر لے آئے اور بولے ہاں کہو کدھر جانا ہے؟ بس سیدھے چلیے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں وہ غریب باپ اور بیٹی پہنچے تھے۔
वो मुसलसल उसी रफ्तार से अपने सफर को जारी रखे हुए थे। जरा आगे जाकर वो दोनों एक गली में मुड़े और दाएं जानिब कच्ची बस्ती की तरफ मुड़ गए। क्या हुआ भाई? क्यों उनका पीछा करा रही हो? आगे गली खराब है और बारिश रुकी हुई है। आप कार को किसी मुनासिब जगह पार्क कर दे। मुझे उस आदमी से काम है। क्यों? क्या उसे पैसे देने हैं? यकीनन उसकी गुर्बत पर तरस आ गया होगा। हाँ, देखते नहीं कितनी सर्दी पड़ रही है और वो नन्ही सी बच्ची बगैर गर्म कपड़े पहने नंगे पाँव जा रही है। तो उसकी फिक्र उसके बाप को करनी चाहिए। तुम्हें क्या परेशानी है? इतने में हम उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। आवाज देकर उस आदमी को रोकना चाहा। वो जरा सा ठटका और मुड़कर हमें देखा। वो बेयकीन था, जैसे हमने उसे नहीं किसी और को पुकारा हो। मैंने इशारा किया कि इधर आओ। वो करीब आया तो मैंने कार की खिड़की से सर निकाल कर कहा, अरे भाई, इतनी सर्दी में बच्ची को तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनाए? ये बीमार पड़ सकती है। जब हम घर से निकले तो इतनी सर्दी नहीं थी। घर कहाँ है? वो सामने वाली आबादी में। उसने इशारा किया और आगे बढ़ गया, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो गरीब जरूर है मगर भिखारी नहीं है। जरा उसके पीछे उसके घर तक चलिए। अरे पागल हो गई हो क्या? वो कोई मजदूर है शायद, अपने घर जा रहा है, उसे जाने दो। मैं उसकी बच्ची के लिए कुछ रकम देना चाहती हूँ ताकि वो उसके लिए गर्म कपड़े और जूते खरीद ले। मेरे पुख्ता इरादे को भांपकर इसरार ने आगे मैदान में गाड़ी रोक दी और बोले, उतरो, ताकि गाड़ी नहीं जा सकती। मैं पर्स और शालों समेत उतर गई। और वो कंबल जो तुम साथ लाई हो, वो तुम उठा लो प्लीज। कुछ देर उनके ताक़ुब में चले और कच्ची आबादी में पहुंच गए। वो एक करीबी मकान में चले गए और मैं उनके पीछे घर में घुस गई। इसरार दरवाजे पर ही रुक गए। एक छोटे से सहन को अबूर करके वो शख्स सामने पड़े हुए कमरे में दाखिल हो गया और साथ वो बच्ची भी। मैं दहलीज पर ठहर गई। बीबी, आप यहाँ क्यों आई हैं? अंदर आ जाए। उसने चारपाई की जानिब इशारा किया। मैं बैठने नहीं आई, बाहर मेरे शोहर खड़े हैं, उन्हें भी बुला लो। वो ये कहकर बाहर लपका और इसरार को अपने घर में ले आया। उसकी बीवी अपने 5 बच्चों में घिरी हुई थी और मट्टी की हांडी से साला निकालकर उन बच्चों के सामने कटोरियों में डाल रही थी। उस शख्स ने हाथ में पकड़ा हुआ शापर बीवी की तरफ बढ़ाकर कहा, ले नेक बखत, रोटियां तो मैं तंदूर से ले आया हूँ। तूने सुबह कहा था ना तेरे पास एक पैसा नहीं, फिर ये रकम कहाँ से आ गई? तूने हांडी कैसे चढ़ाई और सालन भी मुर्गी का बना लिया? इन मेहमानों को भी दे। मेहमानों जितना नहीं है, वो औरत बोली। और ये है कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता, तू इनसे ही पूछ ले। बहन, मैंने अपने घर की बालकनी से बच्ची को सर्दी में बगैर गर्म कपड़ों के नंगे पांव जाते देखा, तो मैं इसके लिए गर्म शालें और ये कंबल लाई हूँ। शायद तुम्हारे पास इन चीज़ों की कमी है। हाँ बेगम साहबा, हम ज़रूरतमंद तो हैं, हमारे पास बहुत सी चीज़ों की कमी है, मगर सब्र शुक्र के साथ जी रहे हैं। ये सुबह से मजदूरी पर निकले थे और बेटी को भी आज साथ ले गए। मजदूरी मिली तो उसके लिए चप्पल खरीदेंगे, मगर शायद ये नंगे पाँव ही वापस आ गई है। मजदूरी ही नहीं मिली होगी। नहीं मिली थी, मैं ये सालन और रोटी खरीद लाया हूँ। तू नहीं तो कहा था कि आज घर में ना देला है और ना पकाने के लिए कुछ है। सुबह से बच्चे भूखे थे, मुझसे सब्र ना हो सका। बाहर निकली, गली पार की तो एक मुर्गी दीवार के साथ बारिश में भीगी खड़ी थी। मैंने झपट कर उसको दबोचा, चादर में छुपा कर घर ले आई, उसको ज़िबा किया और पका लिया। बीबी, तुम इसे चोरी कहोगी, मगर भूख बनते से सब कुछ करवाती है। तुम मेरे बच्चों को हराम का रिस्क खिला रही है, जबकि मैं मेहनत करके हलाल की रोजी कमाता हूँ। तुमने बहुत देर कर दी, बच्चे से सब्र नहीं हो रहा था। मैं क्या करती? हमारे पड़ोसी तो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। फिर रोज कौन किसको उधार देता है? बारिश हो गई तो उससे बचने के लिए एक दुकान के छज्जे तले बैठ गए थे, मगर तू तो बेसब्री करती है, जरा सा भी सब्र न किया। सब्र की भी एक हद होती है। वो दोनों हमारी मौजूदगी से बेनियाज आपस में ही उलझ पड़े थे। मर्द का कहना था, जो खाना उसकी बीवी ने बनाया है वो हिलाल नहीं, और बीवी मजबूरी जाहिर कर रही थी। उसने कहा, तभी तो मैंने इन मेहमानों को नहीं दिया, वरना सालन है हांडी में। सोचा कि बच्चों की मजबूरी है, मगर ना मैं खुद खाऊंगी और ना तुम्हें दूंगी। उन्हें चोरी का ये रिस्क कैसे दे दूं? मियाँ बीवी की ये गुफ्तगू हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी थी। मेरे मियाँ ने कहा कि हम बे औलाद हैं और तुमसे गुर्बत की वजह से इनको पेट भर खाना नहीं दिया जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमें अपना एक बच्चा गोद दे दो और बदले में हम तुम्हारे बाकी बच्चों के लिए हर माह राशन डलवा दिया करेंगे? देखो, ये सौदा महंगा नहीं है। मेरे शोहर का बहुत बड़ा कारोबार है। हम कुछ रकम दी और कहा, अच्छा तैयार रहना, मैं कल आऊंगी। अगले रोज मौसम बेहतर हो गया तो मैं उसके घर गई। उसकी बीवी मेरे साथ आ गई। मेरा घर देखा और बोली, मुझे काम पर रख लो, बच्चे के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, जुलेखा। जुलेखा, तुम कल से काम पर आ जाना। जी आ जाऊंगी, मगर 4 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, बच्चे घर पे अकेले होंगे। ठीक है जुलेखा,
यूं वो जाती और 2 बजे किचन को निपटा कर लौट जाती। खाना मैं साथ ही कर देती कि बच्चों को खिला देना। 2 माह बाकायदगी से काम करने के बाद उसने अपनी बच्ची मुझे देने का फैसला कर लिया, जिसे वो 2 माह अपने साथ लाती रही। उसका नाम रिहाना था। वो मेरे घर और मुझसे अच्छी तरह मानूस हो चुकी थी। मियाँ बीवी ने रिहाना को हमारे सुपुर्द कर दिया। उसकी गोरी रंगत अच्छी ग़िज़ा के बायस निखर गई, आंखें रोशन हो गई, जैसे 2 चमकते सितारे हों। रिहाना के बाल सुनहरी और आंखें नीली रंगत की थी। वो उम्दा और खूबसूरत लिबास में किसी अमीर घर की बच्ची नजर आने लगी। शाहिदा ने पहले उसे खुद घर पर पढ़ाया और फिर स्कूल में दाखिल करवा दिया। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी अता कर दी, तो उसकी शुक्रगुजारी हमने इस तरह की कि रिहाना के वालिदैन को एक पक्का कमरा, किचन और वॉशरूम बनवा दिया, पंखे लगवा दिए और पानी का इंतजाम नलों के जरिए करवा दिया। रिहाना हमारे साथ मानूस हो गई। वो मुझे अम्मी और इसरार को बाबा बुलाती है। हमारे साथ काफ़ी खुश है और उसको पाकर हम भी खुश हैं। वो बहुत अच्छी बच्ची है। उसके माँ बाप सुकून में है। कभी एक दिन के लिए भी उसे अपने साथ नहीं ले गए। इसरार उनकी काफ़ी मदद करते हैं, जिससे उनके दिन फिर गए हैं। रिहाना के बाप ने मजदूरी छोड़ दी है और अपने मोहल्ले में ही करियाने की दुकान खोल ली है। अल्लाह उनको नेकी का अजर दे। और तुम्हें भी। मैंने शाहिदा से कहा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, वक्त का पता ही ना चला। रिहाना की स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया है। अब मैं चलती हूँ। कुछ माह कराची रहकर हम फिर से वापस सऊदी आ गए। उसके बाद फिर मैं 3 साल तक कराची न जा सकी और 3 साल के बाद मेरी शाहिदा से दोबारा मुलाकात हुई। अब शाहिदा की बेटी बड़ी हो गई थी। वो तकरीबन 8 साल की थी और वो बहुत मासूम और प्यारी बच्ची थी। शाहिदा उसके साथ सारा दिन मसरूफ रहती और वो बहुत खुश रहती। इसरार भाई भी उससे बहुत मोहब्बत करते। 2 माह के बाद हम दोबारा सऊदीया आ गए। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए थे। आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था, इसलिए हमने उनका इस्लामाबाद में दाखिला करवा दिया और अब यहाँ इस्लामाबाद हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। मेरे शौहर और मेरी छोटी बेटी सऊदीया में रह रहे थे, जबकि दोनों बड़े बच्चे इस्लामाबाद आ गए। पाकिस्तान का चक्कर लगता, लेकिन इस्लामाबाद में एक किराए के अपार्टमेंट में रहते। जितना टाइम होता हम बच्चों के पास ही बसर कर लेते। कराची हम सिर्फ 2-4 दिन के लिए जाते। मेरे वालिदैन और इसरार के वालिदैन मेरे साथ ही इस्लामाबाद आ जाते। सब बहन भाई बारी बारी आकर इस्लामाबाद में ही मिल जाते, बल्कि कहते, आप लोग हमारे पास ना आए, हम आएंगे तो बहाने से मरी और इस्लामाबाद की सैर कर लेंगे। हमारा इस्लामाबाद में कोई भी न रहता था। कराची वाले मरी इस्लामाबाद जाने के लिए तरस जाते। इसलिए जो 2 माह हमारे इस्लामाबाद गुजरने पर रौनक होती, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत न पड़ती। सब बहन भाई यहाँ आकर मिल जाते। मेरे और इसरार के वालिदैन भी हमारे पास और बच्चों के पास रह लेते। 9-10 साल बाद मेरी शाहिदा से कोई मुलाकात ना हुई। 6 साल से उसके साथ कोई राब्ता भी ना था। मेरे दोनों बच्चे ग्रेजुएट होकर मेरे पास सऊदीया आ गए। बेटे ने सऊदीया में मुलाजमत इख्तियार कर ली और बेटी के लिए इन दिनों हम रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक अच्छा रिश्ता हमें पसंद आ गया। लड़का सऊदीया में ही मुलाजमत करता था, लेकिन उसकी फैमिली पाकिस्तान में रहती थी, रहना था। इसलिए मैं और मेरी दोनों बेटियां कराची आ गए ताकि यहीं शादी की तैयारी करें। एक दिन मैं शाहिदा को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने गई तो देखा कि उसकी बेटी बदल चुकी थी। उसका नाम भी वो फिजा ले रही थी। मैं हैरान रह गई। मैंने उसे कहा, शाहिदा ये बच्ची कैसे बदल गई? वो हंसने लगी और बोली, लंबी कहानी है, आओ बैठकर चाय पीते हैं और साथ में बातें करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। उसने कुछ यूँ बताना शुरू किया कि रिहाना हमारे साथ घुल मिल गई। वो हमारे पास 3 साल रही। उसकी माँ ने काम छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार हो गई थी, तो वो उदास रहने लगी। मैं भी उसके साथ बहुत अटैच हो गई थी। पहले तो वो मेरे पास खुश दिली से रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं नोट करती रही कि वो उदास है। फिर वो बीमार पड़ गई। मैंने उसके माँ बाप से राब्ता किया कि वो लोग हमारे पास आकर रह लें, लेकिन वो ना माने। तो इसरार ने मुझे मजबूर किया कि बच्ची को उसके माँ बाप को वापस कर दो। बच्ची परेशान रहती है, अटैच हो चुकी थी। मेरा दिल नहीं करता था कि उसको वापस भेजूं। 1 महीना इसी कश्मकश में गुजर गया। जब रिहाना सेहतमंद होती नजर ना आई, तो एक दिन मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा और उसको उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। लेकिन उनकी मदद हमने फिर भी जारी रखी। उस रात मैं बहुत रोई और मैं अपने अल्लाह से दुआ करने लगी कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे या फिर मुझे सब्र दे दे, ताकि मेरे दिल से ये ख्वाहिश ही खत्म हो जाए। रोती रही। इसरार भी मेरी वजह से परेशान रहते। वक्त गुजरता गया। अब मेरी हालत काफ़ी बेहतर हो गई। इसरार भी अपने कारोबार में काफ़ी मसरूफ़ हो गए। मैं सारा दिन अकेले घर में फिरती रहती। एक दिन सुबह जब मेरी आँख खुली, तो मुझे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं उठकर दरवाजे तक गई और अपने घर में हर तरफ देखा, लेकिन मैं हैरान हुई कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुसलसल कोई भी दिखाई न दे रहा था। मैं गेट की तरफ आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एक बच्ची
पालने में मेरे गेट के सामने रखी हुई है। बच्ची कोई 3 से 4 माह की होगी। मैं परेशान हो गई। बच्ची रोए जा रही थी। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सड़क से शायद कोई बच्ची को यहाँ छोड़ गया हो। मुझे बताया कि ये कहाँ से आई है, लेकिन मुझे कोई भी नजर ना आया। इर्द गिर्द लोगों से मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने उसको पालने से निकाला, उठाया कि शायद वो भूखी है। उसे घर ले आई और चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध उसके मुंह में डाला। न जाने वो कब की भूखी थी। जल्दी जल्दी दूध पीने लगी। मैंने उसको काफी दूध पिलाया तो वो खामोश हो गई। मैंने इसरार को फोन किया, लेकिन इसरार उस दिन शहर गए हुए थे। बच्ची मेरे पास घर में ही रही। 2 दिन के बाद इसरार घर आए तो मैंने सूरत हाल बताई। वो परेशान हो गई और कहा कि तुम बच्चे को ऐसे घर में नहीं लेकर आना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं उस मासूम बच्ची को कैसे उस ठंडे मौसम में बाहर छोड़ देती। फिर हमने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने बच्ची की तस्वीरें ली। उन्होंने कहा कि जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चल जाता, बच्ची को चाहे तो अपने पास रखें। मैं तो ममता की प्यासी फौरन बोली कि मैं बच्ची को अपने पास रख लूंगी जब तक इसके माँ बाप का पता न चल जाए। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे के माँ बाप का कुछ पता न चला। अब बच्ची को मेरे पास आए 7 माह गुजर चुके थे, लेकिन उसके माँ बाप का कोई अता पता न था। वो बच्ची मेरे साथ मायूस हो चुकी थी। उससे मेरे घर में रौनक आ गई थी। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर उस बच्ची के माँ बाप आ जाए तो मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी। एक दिन मैंने इसरार से कहा, क्यों ना हम पूरी कागजी कार्रवाई के जरिए इस बच्ची को अपने पास रख लेते हैं। इसरार हंसने लगे और कहने लगे, ये तो पहले भी तुम्हारे पास ही है और तुम्हारी बच्ची है। मैंने कहा, नहीं, इसको कागजाई कार्रवाई के जरिए हमें लेना चाहिए। मैंने पुलिस से राब्ता किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने वो बच्ची हमें दे दी। यूँ उस बच्ची का नाम हमने फिजा इसरार रख दिया। अब ये बच्ची 9 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके माँ बाप का कोई पता नहीं। हमारी औलाद है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मेरे बदन से औलाद ना हुई तो अल्लाह ने मुझे मौत जाना तौर पर एक औलाद दे दी। अगर कहीं भूल गया होता या गुमशुदा बच्ची होती तो अखबार में इश्तिहार देखकर कोई तो मेरे पास आता या रिपोर्ट करता, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। शायद ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कोई मौजज़ा था। उसने मेरी सुन ली थी। अल्लाह ने रातों को मुझे रिहाना के लिए रोते देखा तो शायद मेरे अल्लाह को मुझ पर तरस आ गया और अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाज दिया। मैं उस रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है, और अगर कभी हमारी दुआ कबूल ना हो रही हो तो हो सकता है अल्लाह ने उसके लिए कोई और रास्ता खोलना होगा। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, नेक नियति होनी चाहिए और मांगते रहना चाहिए, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का दारोमदार भी इंसान की नीयत पर ही होता है। अल्लाह ताला किसी को औलाद जैसी खास नेमत से कभी भी महरूम ना रखे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो सिड वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।